हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है आज की मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम फिर से बात करने वाले ग्रुप ए और ग्रुप बी आज खेलने वाली फिर से गाइस अपने 3-3 मुकाबले। और आज के दिन के बाद सारे टीमों के आधे से ज़्यादा मैच ख़त्म हो चुके रहेंगे गाइस। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। Out eliminations, they also have 5 eliminations. Meanwhile, just like you mentioned, on the south side, this battle has been taking place. Goblin, he's being protected like the Prince of the Green Army. They for sure do not want him to die here because this fight seems like a lot of pressure coming through from Team True Rippers and Team Soul. They've got to be a little wary because God's Reign are wrapping them from the backlines. This is good news for God's Reign. This is also a good move coming in from them. And look at Jelly. Always looking to divert their attention with the vehicles, the nades to strike Joker. Their big man falls. Now responsibility on Legend and Nakul. Can they deliver? But True Rippers need to be careful. If they overextend and lose one of their men, then God's Reign potentially can take out True Rippers as well without giving them an opportunity for a reset. Soul, although on the other hand, I think this sandwich might result in them just getting taken out on the 4th position, but no, Ronnie overextends, Hydro gets run over, and this completely changes things. True Rippers Kiolamau, he pushes up, takes down Legit, but God's Reign are now charging forward, and True Rippers don't have the numbers. Soul doesn't have the numbers to work with. God's Reign, their chicken dinner now is guaranteed. True Rippers down to their last man. Jelly on a run for his life, spotted out by Omega, gets finished off by Destro. The IGLs going after each other. And now God's Reign, I believe, are also aware about the last man from the side of Higbozon. And the gods are gonna... Mad Kings, now they make the pounce on Nebula. They do not have enough time to reset. Molotov as well, it's out. And that's doing a lot of damage. Nomi backs away, trying to patch himself up. He's already taken a significant amount of damage. Popping that bandage as well, does not have any first aids available. And Mad Kings from the sidelines just constantly being a threat. Nebula, they've already lost out in too many men, but still they somehow defend against Mad Kings. Pro, the only person in the back lines, and I highly doubt now he can be a threat. He opened. That's where the problem lies. God's Reign, once again in the final few. The first game of Rondo as well, they cracked the code. Now as well in the final few. God's Reign, the consistency is top-notch. And they want to continue the same pounce. Utilities now tossed out against Blitz Esports from God's Reign. This one's going to soften him up even more. So I'm taken down to barely any sort of HP. And look at the amount of nades God's Reign's tossing. This is classic God's Reign strategy. They always stack up a lot of utilities in the final few moments, and then they just use them all. An absolute airstrike once again. God's Reign, this is consistency on another level. Focusing yourself on positioning. This time, 3 players are going to push up. Justin from the backlines is going to get knocked out. They thought that Blitz Esports, they were cornered, but it seems like that split coming in from Blitz Esports was brilliant. Yeah, Sarwar from the backlines has been causing so much hurt, and all of a sudden, God's Reign. Destro once again, the man who has been lying low to deliver that finishing blow, takes God's Reign to the final. Problem stacked on the sideline angle, and Phoenix is going to mow them down without any problems. Both the players taking care of Destro. The man's taking a nap. Delta in the back. He wants to find a knock on Phoenix as well. All the shots whiffed. How is Phoenix down? Delta is getting covered from both the angles. The man's barely surviving. He wanted to eliminate himself with his own करके धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बस इंतजार किया कि सामने जो फाइट हो रही है उसे कंप्लीट होने दे, लेकिन आतंकी क्या ये मौका बन सकता है? जी हां, मौका बना। लॉबस्टर उन्हें गिराया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। आतंकी प्लेसमेंट के साथ-साथ वो फिनिशर्स भी निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन गॉड्स रेन उन्हें पता चल चुका है कि बिल्कुल डिप पे एक खिलाड़ी है, तो क्यों ना पहले उन्हें एलिमिनेट किया जाए। लेकिन उसके बाद भी आतंकी को आप देखिए, टेस्ट्रो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाएगी, लेकिन वो फाइनल क्रिकेट और इसी के साथ वो तीसरे स्थान पे बाहर हो गए। प्रो, उन्हें वो मौका मिला और सही वक्त में वो सही स्प्रे, जो नंबर एक तरफा लग रहा था, क्या उसे बराबरी पे लेके जा पाएंगे? प्रो बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड है, उसके बाद भी नियो को डैमेज, लेकिन उनके बीच में अवॉइड करना कितना सही साबित हो रहा है उनके लिए। 10 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है। रैपिडो को 6 फ्रैग मिले हैं, बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि हल्का सा आगे ओपन में जाना पड़ेगा। हाँ, एक रिच का एडवांटेज मिल सकता है नॉनेक्स को। और H4K को आप देखिए, टॉप 3 तक पहुंचे, पर एक भी फिनिश वो हमें इनके खाते में देखने को मिल नहीं रहा है। ओवरऑल स्टैंडिंग्स की अगर चर्चा करें तो 15वें पायदान के साथ शुरुआत की थी H4K ने।
34 टोटल पॉइंट्स इनके पास मौजूद थे और ऐसे में किया रेज गॉड वो डाउन H4 के 2 फाइट्स में एक साथ इन्वॉल्वमेंट, ना ये जीत पाए ना वो जीत पाए। सुजल बचते एकमात्र खिलाड़ी और H4 के 5 प्लेसमेंट पॉइंट मात्र जो उनके पास रहेंगे। बट नॉनेक्स वो तो तैयार नजर आ रही है द नाइट मॉब्स के लिए भी। देखिए जो ड्रॉप क्लाश नहीं हो पाया वो चिकन का क्लाश बन चुका है, बट नेट्स अब आ रहे हैं और वो नेट्स सही जगह जा रहे हैं। सिर्फ का नेट रैपिडो डाउन। द नाइट मॉब्स के पास मौका कि वो यहाँ पे इस क्लच को अंजाम दे, बट होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके नॉनेक्स आगे गए। एक 1v2 का मौका जरूर निकाला था वहां पे, बट अब बस एक के रूप में बचते हैं बीस्ट। क्या वो यहाँ पे क्लच निकाल सकते हैं? एचपी उनके पास ज्यादा नहीं, शॉटगन का एफर्ट और द नाइट मॉब्स इस इकलौती टीम जो सर्कल के अंदर, और बाकी सारी ही टीम्स को फिलहाल सर्कल की तरफ जाना पड़ेगा और वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ब्रीथिंग स्पेस कम होने के कारण सब एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करेंगे। लग तो रहा है कि नॉनेक्स जैसे वो डोमिनेशन पे आए हैं, 10 फ्रैग्स निकाले हैं पिछले मैच की तरह, इस बार भी चिकन आने वाला है क्योंकि बिल्कुल ओपन एरियाज में से बाकियों को आना है और नॉनेक्स के पास तो 4 दीवारी का कवर भी है। बट ठीक है, आप इनका अग्रेशन देखिए। अब लूसीफर 5 फ्लैग निकाले थे बट वो इस मैच के बाहर हुए। बट बीस्ट ये शॉर्ट कनेक्शन होना चाहिए था। अब फ्यूचर के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है। एक 1v1 फाइट में उनको जीतना पड़ेगा। पीछे दूसरा प्लेयर को भी स्पॉट किया। इनफैक्ट अगर प्रॉपर्ली देखें तो 2v2 की फाइट है, बट फ्यूचर जोन के बाहर चले गए और वो सामने वाले प्लेयर भी नॉक पड़े हैं। फ्लैग कंफर्म करने का मौका पूरा मिला और जेरफ का जो कवर फायर आया वो सही साबित हुआ इस टीम के लिए। बट जेरफ को ध्यान रखना चाहिए था। जी नहीं, मैं बोलने ही वाला था उससे पहले। अतर उन्हें देख लेंगे, हालांकि मौली से कंफर्मेशन निकालने में कामयाब हो। अप्रोच टीकेएम की तरफ से, बट अब नॉनेक्स के आक्रमण की बारी। एनोनिमस एक एडवांस पोजीशन पकड़ी उन्होंने, बट रैपिडो बिल्कुल ओपन में पकड़े गए। ये गलती साबित हुई, कहीं यहां से चिकन थ्रो ना हो जाए, बिकॉज एनोनिमस अगर नॉक हुए तो खेल पलटेगा। बट वो नेड एनोनिमस का वेरोन को डाउन किया उन्होंने। नंबर्स गेम में यहाँ पे एक बार फिर से शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। प्लेइंग एरिया आप देखिए, ऐसे भी जुत्सु के पास कोई बहुत ज्यादा है नहीं, गाड़ी से निकलना चाह रहे थे। एनोनिमस ने सही वक्त में वो स्प्रे किया। क्या वो फाइनल कनेक्शन भी यहाँ पे ढूंढ के जाएंगे? जी से कंटिन्यू हो पाएगी क्योंकि नॉनेक्स हैट्रिक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। 39 के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेजी, और नॉनेक्स ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास पहुंच चुके हैं। इससे बड़ा कमबैक मुझे नहीं लगता हमने अभी देखा होगा। बट फिलहाल दो तरफ से सैंडविच होने की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए 2 खिलाड़ी वाइल्ड फैंग को देख रहे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी टीम तमिलाज को देख रहे हैं। ऐसे में फायदा क्या, इंपैक्ट क्रिएट भी कर पाएंगे। स्प्रे गॉड यूएमपी के साथ गए, इनिशियल नॉक निकाला गया, काना जाएंगे और ये कमाल का और एक स्प्रे। फ्रेम कुछ ज्यादा यहाँ पे कर नहीं पाया, इसका ध्यान रखा गया। वाइल्ड फैंग उस 2 की जोड़ी को ढेर करते हुए। जहां कॉन्फिडेंस नॉनेक्स का थोड़ा ज्यादा यहां देखने को मिला, जहां पर एक साथ ना रहकर 2 प्लेयर पीछे रहे और 2 प्लेयर सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी भी जोन का बड़ा एडवांटेज नॉनेक्स के पास है। वो एक अलग कहानी कि अब वाइल्ड फैंग्स उनको भी सेंटर की तरफ ही आना है। फाइनल सर्कल है, टीम तामिलाज उनको भी सर्कल के अंदर ही आना पड़ेगा। टीम तामिलाज के पास मैन एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा है। वाइल्ड फैंग्स फंस गए पूरी तरीके से ओपन में और एम गॉड बड़े आसानी से उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले। पर आर्थर वो क्या ऊपर के साइड पर ग्रेनेड करना चाहते थे, मुश्किलें हुई उनके लिए। और एनोनिमस उन्हें भी देख लिया कि रीपर के पास वो मिनी के टैप शॉट्स अभी भी बचे रहेंगे। नॉनेक्स जो लगातार 3 चिकन डिनर